morning, children. So, we are in a new lecture of chapter number 11, that is United Nations, right? Chapter 11, United Nations, lecture number 3. As you know, we have seen in past two lectures how was UN established, what was the basic concept for establishment of UN, why there was a need to establish UN, that I told you in first lecture. In second lecture, let us go for revision of second lecture. UN was established, then came number of processes, number of things, because say today we are standing in 2020 and UN was established in 1945. That means almost 75 years, right? So in that time of 75 years journey, many ups and downs UN has seen. Basically, UN was established after World War II. What was the main purpose of establishing UN? In order to prevent the world from Third World War. But there were a number of incidents, you see children. If you go through some encyclopedia or if you go through some history, other parts, if you search, you are all present at home. You can search all these things on net. Now it is available. You just type it. You will get all the details. In this 75 years, UN has gone through many ups and downs. Right? Basically, UN was established for avoiding Third World War or any conflict. But unfortunately, it is not in our topic, but let me explain. We will study in 9th standard. As UN was established, after establishment of UN, the most serious situation took place in world, which was called Cold War situation. वो मैं आपको 9th स्टैंडर्ड में डीप में पढ़ाऊंगा कोल्ड वॉर किसे बोलते हैं, कोल्ड वॉर क्या हुआ, और अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं. जस्ट राइट कोल्ड वॉर सिचुएशन, राइट? आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर्स थे, रशिया और अमेरिका. दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और ये परिस्थिति, कोल्ड वॉर की परिस्थिति तकरीबन 40 इयर्स तक चली. दिस कंटिन्यूड फॉर 40 इयर्स and the whole system was shut down. Even there were some times where these two superpowers, America and Russia, even did not consider UN as its existence. UN का भी कोई मायना नहीं रखता था. And the world was divided into two power blocks. One block was headed by America, one block was headed by Russia. दोनों एक दूसरे को खत्म करने पे तुले थे. Not only in the field of politics, but in each and every field. चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो. मैंने एक बार आपको बताया था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट क्या है, तो ओलंपिक बोलते हैं. ये फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप ऐसी कोई इवेंट नहीं है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी इवेंट स्पोर्ट्स में ओलंपिक मानी जाती है, जहां वर्ल्ड के सारे देश उधर इकट्ठे होते हैं. और कोल्ड वॉर की झलक ओलंपिक में भी दिखी जाती थी. When Russia disintegrated in 89-90, I remember I was in 10th standard, 9th or 10th standard, when the last Olympic game before disintegration of Russia took place. I have seen that game. It was a time of black and white TV. मेरे घर पे भी black and white TV था. मैं उधर हाईलाइट्स आती थी, देखते थे हम शाम को. उस तब ये सैटेलाइट चैनल्स ये सब नहीं थी. तो जब रशिया टूटा 89-90 में, उसके पहले लास्ट ओलंपिक गेम खेली गई थी साउथ कोरिया के सिटी सियोल में.
आपने उसका कैपिटल का नाम सुना होगा, साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, सियोल ओलंपिक 1988, आई रिमेंबर स्टिल, राइट। 1988 में जब ये ओलंपिक खेली गई, उस वक्त भी स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अमेरिका और रशिया की दुश्मनी दिखी जाती थी। कई सारे इवेंट्स ऐसे थे जहां अमेरिकन प्लेयर डोमिनेट करते थे, कई सारी इवेंट्स ऐसी थी जहां रशिया का दबदबा था। मान लो एथलेटिक्स, स्विमिंग, वो सब अमेरिका के हाथ में था, गोल्ड मेडल ज्यादातर अमेरिका को मिलते थे। तो जिम्नास्ट, एक्रोबैट्स, ऐसी जो इवेंट थी उसमें रशिया का दबदबा था। मैक्सिमम मेडल्स, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, मैक्सिमम मेडल्स वेंट टू रशिया। अगर ये मेडल्स की टैली करो तो अमेरिका और रशिया फर्स्ट सेकंड प्लेस पे रहते थे। आज की इवेंट में अमेरिका को 15 गोल्ड मिले, रशिया को 10 गोल्ड मिले, तो अमेरिका आज फर्स्ट हुआ, रशिया सेकंड प्लेस पे है। कल रशिया की फेवर की इवेंट है तो उसमें रशिया को 10 गोल्ड मिले तो अमेरिका को 4 गोल्ड मिले। तो आज जो अमेरिका आगे था, कल अमेरिका पीछे हो जाता है। वो पूरी इवेंट में ऐसा चलता था। और लास्ट में आप देखो, जब ओलंपिक का कंक्लूजन आता था तो मेरे को अभी भी आज तक मालूम है, तकरीबन दोनों को 60-70 गोल्ड मेडल मिल चुके होते। दोनों के बीच में डिफरेंस 2-5 मेडल्स का होता। कोई बार रशिया को 67 मिला होता तो अमेरिका को फिर 70 मिला होता, अथवा अमेरिका को 70 मिला होता तो रशिया को 60 मिला होता। और थर्ड प्लेस पे आप देखो तो ब्रिटेन था, चाइना था, ऐसे कंट्रीज थे जिसके टोटल गोल्ड मेडल 22 होते थे। मतलब ह्यूज गैप बिटवीन 2 एंड सेकंड एंड थर्ड प्लेस। फर्स्ट और सेकंड में गैप नहीं था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोनों रशिया और अमेरिका ही खड़े थे, लेकिन सेकंड थर्ड के बीच जबरदस्त गैप था। दैट मीन्स दैट वाज द रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर। और ये कोल्ड वॉर 40 साल तक चला। और 40 साल में ऐसा, अभी मैंने बोला कि यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड in order not to go for third world war, but there were some crises, there were some time when world sat on the brink of third world war. Take for example Cuban crisis. क्यूबा में जे माथाकूट हुई 1961-62 में, अमेरिका और रशिया दोनों सामने आ गए थे। दोनों ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे पे ताक ली थी, सिर्फ बटन दबाना ही बाकी था। अगर ये होता तो शायद हम आज कोई जिंदा नहीं होते, खत्म हो गई दुनिया 61-62 में, बराबर। ऐसा टेंशन वाला माहौल हो गया था अमेरिका और रशिया के बीच। दोनों देश अपनी ताकत लगाने जुटे थे, एक दूसरे को गिराने में जुटे थे। रशिया के जो एलाइज थे वो अमेरिकन देश पे जबरदस्ती करते थे, अमेरिकन एलाइज थे वो रशियन दोस्त को दबाने की कोशिश करते थे। और कई सारी जंग छिड़ चुकी थी अमेरिका और रशिया के बीच। एक देश में जंग चलती है तो एक साइड को अमेरिका सपोर्ट करता है तो दूसरी साइड को रशिया सपोर्ट करता है। टेक फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान हम देखते हैं अभी, तालिबान इज द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसको रशिया के सपोर्ट मिलता था। इसीलिए सरकार के सामने बगावत करने के लिए अमेरिका ने लादेन जैसा आतंकवादी पैदा किया। यूएन का अस्तित्व था तो भी अमेरिका इतना बता देना चाहता था। और लादेन आप सब जानते हो
वही अमेरिका, वही लादेन अमेरिका को 9/11 में मतलब ट्विन टावर्स गिरा के उसको ही डस दिया, फिर उसका दुश्मन बन गया, फिर उसको मार डाला, सबको मालूम है। लेकिन अमेरिका लादेन का जन्मदाता है। आप कोई भी एनसाइक्लोपीडिया सर्च कर लो, आप सबको मालूम पड़ जाएगा, राइट। रशिया नॉर्थ वियतनाम में सपोर्ट कर रहा था सरकार को, नॉर्थ वियतनाम में। तो अमेरिका ने साउथ वियतनाम में गेरिला वॉर शुरू किया और दो वियतनाम के बंटवारे हो गए, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। अफगानिस्तान में कुछ ऐसी हालत थी, कोरिया में भी ऐसी हालत थी। कोरियन पेनिनसुला सदर्न पार्ट में अमेरिका सपोर्ट करता था, तो नॉर्दर्न पार्ट में रशिया सपोर्ट करता था। दोनों कोरिया के बीच जबरदस्त लड़ाई चली और आखिर में आज भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है। ईरान इराक में भी ऐसा हुआ, जहां अमेरिका ने सपोर्ट इराक को किया, तो रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया। शिया सुन्नी का वॉर 10, 12, 15 साल तक चला, लाखों लोगों की जान गई। ठीक वैसे भारत पाकिस्तान का हुआ था। ये तो अमेरिका अभी सीधा चल रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ चलता है और अभी अमेरिका चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसीलिए वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं अभी, है समझ में। वरना 40 साल तक कोल्ड वॉर के समय थे, जब हम नॉन अलाइड कंट्री थे, हमने किसी की मदद नहीं ली थी, तो हमको परेशान करने के लिए आज जिसको हम अपना दोस्त बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, आप पास में ढूंढो डेटा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत को कैसे परेशान किया जाए। और पाकिस्तान नामक जो बंदर था, उसको सब मुफ्त में खैरात में बांट बांट के, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, बंदर को दारू पिलाना, वांदरा ने दारू पाई ने गांडो करेलो वांदरो। ये जो हमारे पड़ोस में जो भिखारी देश है, बराबर, उसको मुफ्त में खैरात में बांट बांट के हथियार, पैसे, एक ही काम था, भारत को आप हैरान करो, परेशान करो। और परेशान करने के लिए आर्मी की एक अलग यूनिट बनाई गई, जिसका आज नाम है ISI। आपको मालूम होगा बच्चों, आज पाकिस्तान जो ट्रेन आतंकवादी भेजते हैं कश्मीर में, सब आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ISI ट्रेनिंग देता है। आपने वो पुलवामा अटैक वाला मूवी भी देखा है, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक वाला भी मूवी देखा है, राइट। वो जो आतंकवादी बोलते हैं, जो टेररिस्ट है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे बढ़िया जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर के लिए जो हालात बिगाड़ते हैं, जैश-ए-मोहम्मद, राइट। उसके सारे आतंकवादियों को आज तक पूरी दुनिया को मालूम है, ISI ट्रेन करता है और हिंदुस्तान भेजती है। तो ये ISI जो बना वो अमेरिका की देन है। फिर समय जाते जाते ISI इतना स्ट्रांग हो गया, अब जो अमेरिका पाकिस्तान का एक समय का दोस्त था, आज वो दुश्मन बन गया है। लेकिन ISI इतना शक्तिशाली बन गया कि वो पाकिस्तानी सरकार को भी नहीं कुछ कंट्रोल में हो रहता, वो अपने हिसाब से चलते हैं, सरकार का भी कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कोल्ड वॉर की। उस सभी वक्त UN था, लेकिन जब अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा था पूरी दुनिया में, रशिया अपनी मनमानी कर रहा था पूरी दुनिया में, UN कुछ नहीं बोला था। आज भी आप देखो, करंटली कोरोना वायरस चाइना में से स्प्रेड हुआ, सबको मालूम है। तो दरअसल पूरी दुनिया को अब हिला के रख दिया
पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना में मरे। कई देश की आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमी खत्म हो गई। जैसे हमारे भारत में लॉकडाउन आया था, आपने देखा है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम हिल गया था। अप्रैल में जून तक तो हम सब घर में ही बैठे थे, मालूम है ना आपको? अभी भी आप घर पे बैठे हो, इसीलिए तो हम वीडियो लेक्चर्स के जरिए पढ़ते हैं, वरना स्कूल नहीं होता अभी। तो ये जो महामारी उसने फैलाई, तो पूरी दुनिया को सॉरी कहने की बजाय वो अपने डोमिनेशन दिखा रहा है। खामखा लद्दाख में प्रॉब्लम कर रहा है, बोलता है लद्दाख हमारा है। एलएसी में प्रॉब्लम बोल रही है, उधर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हांगकांग हमारा है, ताइवान हमारा है। मीन्स चाइना इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ एक्सपांशन। कहाँ यूएन कुछ करता है, सब यूएन तमाशा देखता है। कभी मैंने तो ये न्यूज़पेपर में कभी नहीं पढ़ा कि यूएन ने चाइना को वार्न किया कि भाई ये सब तमाशा खत्म करो, अपनी डिमार्केटेड बाउंड्री तक रहो, दूसरे देश को परेशान मत करो। आप लद्दाख में खामखा इंडिया को परेशान क्यों कर रहे हो? ताइवान को क्यों परेशान कर रहे हो? तो ताइवान को, हांगकांग, अमेरिका मदद कर रहा है। अभी हमको परेशान करने के लिए चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, भरपूर मदद कर रहा है। और पाकिस्तान ऐसा देश है जहां से मुफ्त का मिला उधर लाइन लगा दी। अगर मुफ्त में आप उसको गालियां दो तो वो भी वो ले लेंगे। ऐसा भिखारी देश है जहां कुछ मुफ्त के मिला, खड़े हो गए, पहले मेरे को दे दो। अभी सब मुफ्त का चाइना बांट रहा है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि चाइना ऐसे ही हमको नहीं दे रहा है। ये सब हम पे मेहरबानी क्यों होती है कि ताकि हम हिंदुस्तान को परेशान करें। चाइना को हमसे बहुत डर है कि इफ इंडिया वुड बी स्टेबल, इफ नथिंग हैपेंस इन इंडिया, एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और पूरी दुनिया में इंडियन डिप्लोमेसी की वाह वाह हो रही है, because Narendra Modi has created a great image of India in world. दुनिया के सारे देश इंडिया को मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन दो चार ऐसे देश है जो इंडिया का विरोध कर रहा है, चाइना के बगल में से उछल के। एक है पाकिस्तान, एक है टर्की और एक है मलेशिया। ये 2-3 देश है जो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को। तो ये सब वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, सबको मालूम है। अभी आज भी यूएन जिंदा है, फिर भी यूएन कुछ नहीं कर सकता है। तो दिस इज द सिचुएशन, राइट? मैंने आपको ये 8-10 मिनट क्यों ये सब बताया कि ऐसा नहीं कि चलो बुक में लिखा है कि यूएन इज देयर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल थिंग्स। सॉरी, आज इतना दुनिया के देश, सब देश के बीच तनाव बन गया है, सारे देश यूएन के मेंबर्स हैं, तो भी आज यूएन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अभी अक्टूबर मंथ में एस्टैब्लिशमेंट था यूएन का, तो नरेंद्र मोदी और पीएम was one of the guests of honor to speak something on UN, and he has delivered a very good speech on that establishment day, on 75th establishment day. उसने ये बोला था कि आज यूएन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आज यूएन का मान सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? कि यूएन की जो गाइडलाइंस है, यूएन की जो वैल्यूज है, उसकी कई देश
सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है। आया समझ में? So we have established an international body to maintain world peace. But if there is no existence of world peace, then what is the use of establishing this international body? तो यूएन का कोई मायना ही नहीं है। ऐसे हमारे पीएम मोदी ने बोला था। सो इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। कौन सा देश कब किसकी बगल में चला जाए, कौन सा देश कब किसका साथ छोड़ दे, किसका दामन पकड़ ले, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बच्चों। लेकिन हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, हम ये रोज ये स्टोरीज देखते हैं। तो आज ऐसा माहौल है, राइट? तो ये वाला लेक्चर 2 का रिवीजन भी था और यूएन के बारे में मैंने आपको करंट सिचुएशन भी बताया कि करंटली यूएन में क्या हो रहा है। तो लेक्चर 2 में मैंने आपको जनरल असेंबली के बारे में बताया था, राइट? जनरल असेंबली के बारे में बताया बिकॉज इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएन। तो जैसे मैंने इधर लिखा है रिवीजन ऑफ लेक्चर 2, उस वक्त वो लेक्चर में थोड़ा हम जल्दी में थे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता था, जब मैंने वो लेक्चर देखा तो मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा जल्दी हो गया है। तो आज ये टॉपिक मैं आपको वापस करवाना चाहता हूँ। ऐसा समझ में? जनरल असेंबली का टॉपिक मैं आपको दोबारा करवाऊंगा आज ये लेक्चर में, ताकि आपका जनरल असेंबली का टॉपिक दोबारा क्लियर हो जाए। अगर आपको जो लास्ट लेक्चर में समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, तो दूसरी बार हम समझ लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आज मैं वापस करवाता हूं, ताकि जो बच्चों को टॉपिक जो समझ में नहीं आया है वो आसानी से समझ सके। आए समझ में? सो दैट वाज जस्ट अ स्टोरी ऑफ कनेक्टिंग रिविजन लेक्चर टू प्रीवियस लेक्चर। Now today we start with our General Assembly. Just a minute, General. क्योंकि मुंह सूख जाता है, पानी तो पीना पड़ता है, तो ही मजा आता है लेक्चर पढ़ाने में। तो we'll talk about General Assembly. Now see, as you know children, General Assembly is called World Parliament. As every independent nation had its own parliament, General Assembly is called World Parliament. आया समझ में? तो let us go through the topic called General Assembly. तो General Assembly, page number 87. Page number 87. तो General Assembly is the biggest organ of UN, which can also be called वर्ल्ड पार्लियामेंट। उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड पार्लियामेंट। आया समझ में? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स नेशन एट इट, जितने जितने यूएन के जो मेंबर्स हैं, जितने जितने उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी यूएन के 193 मेंबर नेशंस हैं। दुनिया के 193 मेंबर कंट्रीज यूएन के मेंबर्स हैं। हर एक देश छोटा बड़ा होता है, इसीलिए there is some specific limit for each and every member to be represented in UN. ओके? लेकिन जब वोटिंग आता है, जब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब हर एक कंट्री, हर एक मेंबर एक वोट दे सकता है। समझ में? ओके, लेट अस सी। Every member nation can send at least 5 representative or delegates. मैक्सिमम, चाहे देश छोटा है तो 1 या 2 मेंबर से चलेगा। बहुत बड़ा देश है, जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, ये बड़े बड़े देश, ब्राज़ील है, कनाडा है, तो ये जो बड़े बड़े देश है उसके मैक्सिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं। अभी इंडिया के 5 मेंबर्स हुए हैं, लेकिन वो एक मेंबर चीफ होता है जो यूएन का सब कामकाज संभालते हैं इंडिया की तरफ से। ऐसा समझ में? 4 उसके सपोर्टिंग होते हैं। तो लेट अस सी।
be sent at least, can send at least 5 representatives to it, right? But at the time of voting, one nation can cast only one vote. जब वोटिंग होती है तब कोई भी देश एक समय पे एक ही वोट दे सकते हैं। चाहे इंडिया के 5 मेंबर्स थे उधर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया 5 वोट दे सकता है, इंडिया एक ही वोट दे सकता है समझ में? At the time of voting, one nation can represent only one vote. The general meeting is once held in a year. अगर विश्व शांति है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड में, तो they are meeting every time, once in a year. अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है, अगर कोई दो देश के बीच वॉर हो गया, मेजर इश्यू हो गया, तो जनरल असेंबली को इमरजेंसी में बुला सकते हैं, वरना every member nation meets once in a year. Okay? Its members elect the president and the vice president in the meeting every year. The election होता है, सब प्रोसेस होती है समझ में? Mrs. Vijayalakshmi Pandit was elected as a president of general meeting in the year 1953-54. उसके वो साल में हमारे यूएन भारत के मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित was elected as a general secretary, as a president of UN. ऐसा कुछ नहीं. The assembly represented the Universal Declaration of Human Rights on 10th December 1948. Underline this line. Key line underline करो आप. That underline करो. The General Assembly presented the Declaration of Human Rights on 10th December 1948. As such, the General Assembly can discuss and suggest the solutions or give advice to any issues in the world within the limits prescribed by UN Charter. जो UN Charter में कायदे कानून है, उसके अंदर रह के जनरल असेंबली सब कुछ अपना काम कर सकते हैं, right? The General Assembly immediately draws the attention of Security Council towards any situation which can put the peace and security of world into danger. अगर वर्ल्ड में ऐसी कोई घटना बनी, तकलीफ हुई, तो जनरल असेंबली का जो दूसरा ऑर्गन है, सॉरी यूएन का जो दूसरा पावरफुल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे वो सबसे पावरफुल है, उसका ध्यान दौड़ सकते हैं। अगर उसके ही मेंबर्स कुछ गलतियां करें तो किसको आप बोले? अगर कोई दुनिया का देश कोई गलती करे तो अमेरिका, रशिया, चाइना सब इकट्ठे होके उसको सीधा करते हैं। अगर इधर ये जो परमानेंट मेंबर्स है अमेरिका, रशिया, चाइना, वो ही गलती करे तो जनरल असेंबली किसको बोलने जाएगी? ऐसा समझ में? The General Assembly immediately draws the attention of the Security Council towards any situation which can put the peace and security of the world into danger. उसका ध्यान दौड़ सकते हैं कि भाई ये सब बंद करो, ये नहीं चलेगा। ऐसा समझ में? The authority to grant membership to a nation lies within General Assembly. किसको मेंबर बनाना है, किसको मेंबरशिप में से टर्मिनेट करना है, वो सब डिसीजन, अगर कोई देश ऐसा है यूएन में रह के भी यूएन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो जो शायद यूएन के ध्यान में आता है उसकी एक्टिविटी, तो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अगर कोई नया देश है उसको मेंबर बनना है, तो उसकी जांच पड़ताल करके यूएन उसको मेंबरशिप देता है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स what General Assembly has to do. Number 1, maximum 5 delegates. Number 2, General Assembly meets once in a year for election of president and vice president and all these things. उसके हाथ में सारे पावर्स हैं। अगर कोई नेशन अगेंस्ट चाहता है तो सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करता है,
कैंसिल करनी है, किसी को मेंबर बनाना है, वो सारी चीजें, सारे पावर्स जनरल असेंबली के हाथ में होता है। तो वैसे देखा जाए तो जनरल असेंबली इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। मेन, पावरफुल में नहीं बोला, मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। नाउ टर्न योर पेज, we'll switch over to Security Council, the most powerful organ of UN, Security Council, right? सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन का सबसे शक्तिशाली ऑर्गन माने जाते हैं, क्योंकि यूएन के जो आज जो 5 पावरफुल कंट्रीज है उसके 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। रोटेशन के हिसाब से उसको जगह मिलती है दुनिया के सारे देश में, ताकि 15 मेंबर्स कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, राइट? सिक्योरिटी काउंसिल, पेज नंबर 88। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। इट हैज 15 मेंबर्स, out of these 50 members, 5 countries, that is USA, Britain, France, Russia and China are the permanent members. जो 10 मेंबर का रोटेशन होता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये परमानेंटली यूएन के मेंबर्स हैं। तो सारे मेंबर्स पहले इसकी सलाह लेते हैं, ये 5 देश की, फिर आगे जाके पूछोगे भाई इस 5 देश में भी देखो बखेरा क्या है। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन एक साइड है, डेमोक्रेटिक नेशंस है। रशिया भी आज डेमोक्रेटिक ही है, लेकिन वो पहले से अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। मैंने लेक्चर में बताया आपको, कोल्ड वॉर के सिचुएशन से पहले से रशिया और अमेरिका की दुश्मनी है। अच्छा, रशिया को फॉलो करता है चाइना, तो चाइना और रशिया दोनों एक साइड है, तो दूसरी साइड है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, तो उधर भी जंग छिड़ी हुई है। जो ये 3 देश करते हैं वो 2 उसका विरोध करते हैं, और ये जो वो 2 करते हैं वो 3 इसका विरोध करते हैं, तो उधर भी प्रॉब्लम तो है ही। मतलब आज यूएन की सारी ऑर्गन्स की धज्जियां सारे देश उड़ा रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री इज फाइटिंग फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। ऐसा समझ में। द अदर 10 members आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली, रोटेशन के हिसाब से। भारत को एक बार चांस मिला है। द सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉयज ट्रेमेंडस पावर्स टू मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास अनलिमिटेड पावर्स है, लेकिन वो पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 देश में 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप अमेरिका को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप रशिया को सपोर्ट करता है, तो अंदर उधर भी लड़ाई होती है। ऐसा समझ में। द सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉयज ट्रेमेंडस पावर्स इन मैनेजिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। Its aim is to solve disputes between nation diplomatically, मतलब बातचीत करके, as far as possible, right? लड़ाई को मना कर सकते हैं, लेकिन बातचीत जारी रखेंगे। The head of United Nations is called General Secretary. उसको जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। He is appointed by the General Assembly at the recommendation of Security Council. जनरल सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों की एडवाइस ली जाती है, और उसकी एडवाइस के हिसाब से उसका चयन होता है, मतलब इलेक्शन होता है। He works as a chief administrative officer of UN, right? सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली ऑफिसर यूएन का कौन है? जनरल सेक्रेटरी। है समझ में? अभी ये नया टॉपिक है वीटो। व्हाट इज वीटो? वीटो मीन्स नेगेटिव पावर। अभी मैंने बोला परमानेंट मेंबर्स है वो 5 है, पांचों देश को वीटो दिया गया है। मतलब 5 में से 4 देश कोई प्रपोजल लाए और एक देश है वो प्रपोजल रिजेक्ट करना चाहता है, तो उसके सामने तो 4 देश ने हाँ बोल दिया है, एक देश ने मना कर दिया है। अगर वो देश अपना वीटो पावर यूज करे, कि बोलते हैं कि हम वीटो पावर अपना यूज करते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं करने का है, तो वो जो 4 देश हाँ बोलते हैं उसको भी ठहर जाना पड़ता है। ये परमानेंट मेंबर्स है, उसको ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप अपने कैरियर में 2 बार यूज कर सकते हो वीटो पावर, 3 बार यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं। अनलिमिटेड टाइम तक मैक्सिमम वीटो पावर यूएन में रशिया ने यूज किया है। जब पाकिस्तान कोल्ड, मैंने बोला था कोल्ड वॉर के समय पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके हिंदुस्तान को इतना परेशान कर रहा था, इतना परेशान कर रहा है जिसकी बात ही मत सोचो। कई बार अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर इश्यू में, खास करके क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही रीजन है, कश्मीर इश्यू। तो कश्मीर विवाद पे, कश्मीर इश्यू पे अमेरिका ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया है। उसी समय रशिया ने उसका विरोध किया है। 1971 का जब वॉर हुआ भारत पाकिस्तान का, तो अमेरिका बिन बुलाए पाकिस्तान के बगल में जा बैठा था कि पाकिस्तान हमारा एलाय है, भारत पाकिस्तान का वॉर है तो हम अपने मित्र को मदद करेंगे। मतलब इंडिया और अमेरिका का वॉर बना था, तब जाके उस वक्त सबसे बड़ा वीटो पावर रशिया ने यूज किया था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से वॉर लड़ता है तो भले भारत हमारा मेंबर है, हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान की ओर से लड़ता है तो हम भारत की ओर से लड़ेंगे। तब जाके अमेरिका चुपचाप बैठा, वरना भारत पाकिस्तान की जो 1971 का वॉर हुआ उसमें अमेरिका को कूदना था। तो रशिया ने चैलेंज किया कि अगर अमेरिका एंटर होता है तो हम इंडिया की तरफ से लड़ेंगे, तो ये वॉर भारत पाकिस्तान का नहीं होता, ये वॉर बन जाता रशिया अमेरिका का। ऐसी तो कई सारी घटनाएं हैं जो यूएन में बन चुकी है। व्हाट इज वीटो? द वीटो पावर और राइट टू डिनाई इज अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे मैंने आपको बताया 5 में से 4 मेंबर हाँ बोलते हैं और एक मना करता है तो भी वीटो यूज कर सकते हैं। 5 में से 4 मेंबर ना बोलते हैं, एक हाँ बोलता है तो उसको हटवा सकते हैं। राइट? इट इज नेसेसरी फॉर ऑल 5 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल टू एग्री अपॉन ओवर द डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना है तो 5 मेंबर्स की हाँ चाहिए। अगर एक मेंबर मना करता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। 4 हाँ बोलते हैं, एक को जबरदस्ती हाँ बोलनी पड़ती है तो वो भी वीटो पावर यूज करेंगे कि हमको मत परेशान करो, हम वीटो पावर यूज करते हैं, हम मना करते हैं, ये काम छोड़ दो। ऐसा कुछ The resolution doesn't pass if any of the 5 members uses veto power. बराबर है? और मैंने बोला भी कि आज तक यूएन में सबसे ज्यादा आप नेट पे सर्च कर लेना, सबसे ज्यादा यूएन में वीटो पावर का यूज, वीटो पावर का यूज सबसे ज्यादा रशिया ने किया है समझ में? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप वी हैव स्टडीड रिवाइज लेक्चर 2 जनरल असेंबली का मैंने आपको दोबारा पढ़ाया और सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो पावर के बारे में आपको बताया। नाउ चिल्ड्रन, इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क।
short note on General Assembly. Short note on the Security Council. And third question, what is meant by veto? तो ये पहला सवाल बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा बना. So these are the three questions which you are supposed to send me as a part of homework. Question number 1. Write a short note on General Assembly. Question number 2. Write a short note on Security Council. और क्वेश्चन नंबर 3. What is veto? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के हिसाब से आपको भेजने हैं. We'll meet in lecture number 4. Till then,